Hello children, welcome back again to science class 9, chapter 8, and the name of the chapter is motion. So children, already in the previous video, that is part 1, we have discussed about the terms up to acceleration we have completed. So in this video, we will cover the graphical representation of motion as well as how how to prove the three equation of motions and circular motion, what is the uniform circular motion, and few problem sums we will solve. So let's begin with graphical representation of motion. So we have two type of graph that we are going to study in this class. The first one is distance time graph and the second one is velocity time graph. Okay, so in the distance time graph we have again two type, that is uniform speed or velocity, means distance time graph for uniform speed or velocity, and distance time graph for non-uniform speed or velocity. So already we have discussed in the previous video what is uniform speed or non-uniform speed or velocity. Okay, so once again I am reminding you, uniform speed means if a body travels equal distance in equal interval of time, that is called uniform speed. Whereas if a body covers unequal distance in equal interval of time, then that is called non-uniform speed. तो फ्रेंड्स चलते हैं इस ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी ग्राफ किस तरह से बनता है, दैट वी विल लर्न नाउ. सो on the x-axis I have taken the time is measured in second, and on the y-axis I have taken s for distance, because this is distance time graph. So s in physics हम लोग distance को s से denote करते हैं, तो वहाँ confusion नहीं होना है. And this distance is measured in meter, that's why I have written m, meter. Okay, so for a uniform speed or velocity, the distance time graph will always be a straight line graph. ये कैसा होगा, हमेशा straight line graph होगा. ठीक है. अब now ये जो distance time graph always gives us speed. क्या देता है हम लोगों को? It gives us speed. Okay, why? How? Because we know that speed equal to distance by time. Okay, so distance by time, so distance by time equal to what? Speed. So from distance time graph we get speed. तो ये ग्राफ से हमको क्या मिलेगा? स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी बॉडी का. तो कैसे निकालेंगे, देखो, सपोज द पॉइंट इज B और A, सपोज A इसको लेते हैं. ओके, तो OB इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. दिस इज कॉल्ड स्लोप. OA इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. और ये स्लोप से ही क्या मिलेगा हमको? स्पीड मिलेगा. तो स्लोप को कैसे मेजर करेंगे? तो गेट द स्पीड, स्लोप को मेजर करके कैसे हमको स्पीड मिलेगा? फॉर दिस, इसके लिए हम जस्ट यहाँ पे एक मार्किंग बना लेते हैं, स्केल बना लेते हैं. दिस इज 10, 20, 30, 40 एंड 50. इन द सेम वे हेयर हम लोग ले लेते हैं ये 50, 100, 150, 200, like this. ओके, तो क्या करना है कि फ्रॉम द A point you drop a perpendicular on x-axis. x-axis पे एक perpendicular ड्रॉप करो.
परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ओके, नाउ सी स्लोप इक्वल टू क्या होता है, राइज बाय रन। राइज मीन्स इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, स्लोप इक्वल टू राइज बाय रन। ये जो स्लोप है ना, कहाँ तक राइज किया है, देखो तो यहाँ से कितने यूनिट तक राइज किया है, हाउ मच राइज इट इज। तो ये कहाँ से मिलेगा हमको, इधर से मिलेगा। ओके, तो सपोज दिस इज 150, दिस इज सो ऑलमोस्ट इट इज लुकिंग लाइक 180। तो कितना होगा ये 180, दैट इज राइज। राइज मीन्स दिस एंड रन मीन्स कहाँ तक, ये दिस वन, द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, द वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस इज रन एंड द वैल्यू ऑन वाई एक्सिस इज राइज। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस का कितना वैल्यू है, ठीक है, ऑलमोस्ट 40। इसको कैंसिल करेंगे, 2 9 जा, दैट इज 4.5 इज द स्लोप। ओके, slope equal to this much, so it means speed of the body is 4.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर था और ये सेकेंड में हमने कैलकुलेट किया था। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड द स्लोप एंड द फ्रॉम स्लोप वी विल गेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो दिस वन। नाउ वन मोर थिंग, इसको हम लोग देखते हैं। सपोज एक बॉडी यहां पे था, दूसरा कंडीशन देखते हैं आप। ओके, विल सी द अनदर कंडीशन। दिस इज ए और ये बी। ओके, अगर बॉडी जो है एट 20 सेकेंड, देखो तो ये कितना पे 20 सेकेंड पे, और सपोज ये सेकेंड ही हम नहीं लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं t1। एट टाइम t1 बॉडी का पोजीशन कितना है, b पे। ठीक है, और एट टाइम t2 बॉडी का पोजीशन कितना है, यहां पे है, c पे है। ठीक है, ओके, इसका भी वैल्यू को हटा देते हैं हम लोग, और देखो तो यहाँ पे कितना मिल रहा है। सपोज दिस इज t1 और ये टाइम जो है दैट इज t2। ठीक है, तो वी विल फाइंड वन फॉर्मूला। तो ये यहाँ ये स्पीड कितना है, यहाँ से यहाँ तक जाने का बॉडी का स्पीड कितना था, मीन्स फ्रॉम B टू C। पहले तो हम लोग इसमें किए थे क्या, ऑरिजिन से देखे थे ना, OA। बट यहाँ पे अगर हमको सिर्फ ऑरिजिन से नहीं चाहिए, हमको अगर चाहिए B से C तक का स्पीड बॉडी का कितना था, यहाँ पॉइंट B से लेके C तक का स्पीड कितना है, तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज वेलोसिटी और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, सॉरी ये s1 होना चाहिए और ये s2, दैट इज डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस कितना है, दैट इज s2 माइनस s1, और टाइम कितना लगा उसके लिए, बड़ा टाइम ये है ना, तो पहले t2 माइनस t1, और बड़ा डिस्टेंस क्योंकि ये था इसीलिए मैंने s2 पहले लिखा, और छोटा डिस्टेंस क्या है, ये है, यहां से शुरुआत हुआ था ना बॉडी का ऑलमोस्ट 2, ये b पे, तो b का वैल्यू कितना है s1 और c का वैल्यू कितना है y एक्सिस पे s2, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है, s2 इज बिगर वैल्यू देन s1, इसीलिए बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, दैट इज s2 माइनस s1। और यहाँ पे टाइम, क्योंकि ये इनिशियल टाइम है और ये फाइनल टाइम है, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये एक फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को वेलोसिटी का। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू
या स्पीड इक्वल टू s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो ये फॉर्मूला जो होगा ना चिल्ड्रन, ये व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स हमें बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होगा ना वो हमेशा कर्व्ड होगा। इट कैन बी लाइक दिस इंक्रीजिंग और इट कैन बी डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड है दैट इज ऑलवेज कर्व्ड, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। ठीक है, और इसका भी जैसे स्पीड जो है सपोज दिस पॉइंट और ये पॉइंट से निकालना है तो उसी तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट को प्लॉट करो, है ना, देखो, और यहाँ वाई एक्सिस पे इसका वैल्यू ढूंढो कितना है ना, एंड दैट t1 t2 एंड दिस इज s1 s2, और इसी तरह से वेलोसिटी या स्पीड हम लोग फाइंड कर लेंगे in case of non-uniform speed or velocity also. Okay, so now this one is completed. Now we will move to velocity time graph in the next slide. So children, the next type of graph is velocity time graph. Okay, and again here two conditions are there, one for uniform motion and another for uniform accelerated motion. So uniform motion, like previous graph, I told you only if a body cover equal distance in equal interval of time, and this is uniform accelerated motion। मतलब uniform motion तो है ही, साथ ही साथ उसमें acceleration भी डेवलप हो गया। ओके, सो पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये कैसा बनेगा। सो इन दैट केस चिल्ड्रन, ऑलवेज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन विल बी आल्सो अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हमेशा जो स्ट्रेट लाइन बनेगा विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का पैरेलल एक लाइन बनेगा। तो कैसे यूनिफॉर्म, क्योंकि जो ये वेलोसिटी है ना, देखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो देखो तो, और इसका टाइम देखो कितना है, सपोज दिस इज t1 एंड ये टाइम देखते हैं t2। ठीक है, तो देखो एट टाइम t1, at time t1 the velocity is this much same, and at time t2 also the velocity is same. It means the motion of the body is uniform, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, सेम ही वेलोसिटी है। ओरिजिन पे भी देखो वेलोसिटी सेम है ना। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। Now one thing we need to understand, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मिला था, हमको स्पीड मिला था ना, इन द सेम वे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको दो चीज मिलता है। यहाँ सिर्फ स्पीड मिला था ना, यहाँ से हमें दो चीज विल गेट। फर्स्ट वन इज एक्सीलरेशन, ओके, एंड सेकेंड दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। दो चीज यहां से मिलता है। तो ये तो समझ में आता है ना एक्सीलरेशन कैसे आता है, क्योंकि एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज एक्सीलरेशन। सो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ गिव यू एक्सीलरेशन। एंड सेकेंड थिंग, एक और चीज हमें मिलता है दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो पहले देखते हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना होगा। इन सच केस अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को ए से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एक्सीलरेशन इस केस में क्या होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने देखा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो तो फाइनल वेलोसिटी भी सेम है ना, सेम यहाँ पे, एंड इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो सेम। तो क्या हो गया,
v इक्वल टू u है, मींस 0, दिस पार्ट इज 0, टाइम व्हाटएवर कुछ भी हो, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो इन सच ग्राफ द एक्सीलरेशन विल बी ऑलवेज 0। तो अगर ग्राफ जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर जो लाइन पैरेलल एकदम स्ट्रेट लाइन हो, इन दैट केस द एक्सीलरेशन इज ऑलवेज 0। सो यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सीलरेशन इज ऑलवेज 0। तो अब देखते हैं कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि ये सपोज हमको यहां से लेके बॉडी यहाँ ये टाइम t1 पे यहाँ पे था बॉडी और t2 टाइम पे बॉडी यहाँ पे आ गया, तो हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी हैज कवर्ड व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम a to b, मतलब a से b तक जाने में बॉडी को कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये कैसे निकालेंगे, ये पार्ट जो है ना, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वी नीड टू फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द बॉडी अंडर दिस ग्राफ, है ना। ये ग्राफ यहाँ, ये ग्राफ के अंदर नीचे जितना भी एरिया है ना, उस एरिया को हमको फाइंड करना है। तो ये एरिया, इसका जो एरिया होगा ना, दिस एरिया इज ओनली द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये एरिया कैसे, ये क्या बन गया, एक ये बन गया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कैसे मिलेगा, दिस मच, ये लेंथ हमें पता रहेगा, स्केल तो दिया रहेगा ग्राफ में, एंड ब्रेथ भी हमको ये पता रहेगा। तो लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द एरिया। सो यू विल गेट द डिस्टेंस एरिया इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ओके, सो इन दिस वे हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब मोशन तो यूनिफॉर्म है बट वो एक्सीलरेशन भी है साथ में, मतलब एक्सीलरेटेड बॉडी जो है एक्सीलरेट हो रहा है, हर मिनट जो है ना, हर सेकंड जो है, हर इंटरवल के बाद उसका बॉडी के अब उसका जो स्पीड है वो कुछ बढ़ रहा है ना, सेम यूनिट बढ़ रहा है, एंड दैट्स व्हाई द बॉडी हैज एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा, सो इट विल बी it will also be a straight line ग्राफ। ओके, इस तरह का ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं, देखो, और ये पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट इज B, दिस इज A, दिस इज B। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ ऑलवेज इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब एक्सीलरेशन तो फाइंड इसका कैसे करेंगे, सपोज इसके लिए तो एक्सीलरेशन के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो यहां से यहां तक का एक्सीलरेशन कितना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे इस जगह, और यहां ड्रॉप करके एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू निकाल देंगे। इन द सेम वे ये वैल्यू मिल जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, है ना। और एक्सीलरेशन वी नो दैट v माइनस यू, तो ये मिल जाएगा, यहाँ का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज v, यहाँ का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज u, एंड ये दोनों टाइम को माइनस करेंगे तो यू विल गेट t, और पूरा वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन तो हमको इस तरह से मिल जाएगा। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो डिस्टेंस कवर के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अगेन फाइंड द एरिया कवर्ड बाय अंडर दिस ग्राफ, है ना। अगर डिस्टेंस कितना, अगर फाइंड करने बोला कि A और B तक जाने में, है ना, एक बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, ये डिस्टेंस फाइंड अगर करना पड़े हमें, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम इस एरिया को, इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया है ना, उसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देन दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A to B। A to B का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द एरिया मेड बाय दिस ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा हमको, अगर हम इसको A, B और दिस पॉइंट को C लें और इस पॉइंट को D ले, देन ABCD क्या है
तो एरिया कैसे मिलेगा हमको? एरिया विल बी दैट इज एरिया ऑफ क्या व्हाट शेप इज दिस? दिस इज ऑब्वियसली अ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD ABCD। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड ऑब्वियसली कौन सा साइड है? AD एंड BC। AD प्लस BC इंटू हाइट। हाइट कौन सा होगा? CD या DC बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इन सब का वैल्यू हमको पता ही चल जाएगा यहाँ से, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से वैल्यू पता चल जाएगा। यू विल पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस shaded portion, and the area will be equal to the distance covered by the body from while traveling from A to B, and distance covered equal to क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू प्रूव ग्राफिकली द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी। सो नेक्स्ट we will prove equation of motion by graphical method. So children, we have three equation of motion. The first one is V equal to U plus AT, that is also known as velocity time equation, और इसको first equation of motion भी बोलते हैं। The second one is S equal to UT plus half AT square, इसको हम लोग पोजीशन टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, जिसको हम लोग पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन भी बोलते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो चिल्ड्रन याद रखो कि दिस थ्री इक्वेशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर एटलीस्ट वन जरूर एग्जाम में आता है, and the second one is the most important among this three। ऐसे तो important सभी है, लेकिन second one is the most important। तो at first we'll prove the first equation of motion, that is V equal to U plus AT graphically। तो कभी कभी velocity time equation भी बोल देता है, तो इसीलिए सब नाम से इसको जानना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे क्या करेंगे? we will take one ग्राफ, ठीक है। ग्राफ लेते हैं लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, ओके, और एक स्लोप लेते हैं लाइक दिस। सो दिस इज A एंड दिस पॉइंट इज B, ठीक है। तो ये जो होता है ना इस तरह का स्लोप, ये वाला जो स्लोप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। बट हेयर मींस बॉडी के पास क्या है, कुछ ऑलरेडी पहले से ही एक इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब वो स्टार्ट जो है वो रेस्ट से नहीं हुआ है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ है पहले से ही। और इसमें क्या है कि द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा इसका मतलब 0 है। और इन दैट केस इनिशियल वेलोसिटी जो होगा बॉडी का, ये बॉडी का उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रेस्ट से स्टार्ट हमने नहीं किया है इसको, ठीक है। तो सपोज दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ओके, देन V इक्वल टू U प्लस AT, कैसे इसको ग्राफिकली हम लोग प्रूफ करेंगे? तो ग्राफिकली प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सपोज दिस इज क्या है, ये है टाइम। तो यहां से सबसे पहले क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना है एक्स एक्सिस में। हाँ, इसको ले लेते हैं हम लोग C, ठीक है। एंड यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये सॉरी पैरेलल लाइन ले लेते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पैरेलल ले लो, और दैट पॉइंट इज D, इसको D मान लो, ठीक है।
अब नाउ ये मान लो ये जो लगा ना, ये दिस इज टाइम, ये क्या है, टाइम है ना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है हमको, ठीक है। और दिस जो है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ओके। एंड दिस जो है ये क्या है, दिस एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम। तो मान लो कि ये जो टाइम है कितना लगा, t, ओके। एंड ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, u से। तो ये जो ओ ए जो है दैट इज हाउ मच, u, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, a इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और b क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, v, फाइनल वेलोसिटी इज v, है ना। तो हो गया। अब इसका जो हम लोग जानते हैं कि इसका स्लोप पहले निकालना है, स्लोप ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालना है, इसको हमने बताया था कि स्लोप इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो लाइन है ए बी का स्लोप कैसे मिलेगा हमको, दैट इज मेजर ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग राइज बाय रन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज राइज बाय रन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर, इस तरह से समझते हैं, मेजर ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय ऑन, मेजर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये होता है मेजर ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय मेजर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे कितना है, दैट इज बी डी, ठीक, और एक्स एक्सिस का वैल्यू कितना है, दैट इज ए डी, एंड स्लोप, स्लोप कितना है, दैट इज ए बी, इसको भी लिख देते हैं, ओके। सो तो स्लोप ए बी हो गया, मेजर ऑन वाई एक्सिस बी डी, एंड मेजर ऑन एक्स एक्सिस कितना हो गया, ए डी हो गया, ठीक है। नाउ ये जो ए बी है ना, ए बी इज द स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने बताया था ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, उसका जो स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से हमको क्या मिलता है, स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, है ना, उसका स्लोप से हमको ये मिलता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से उसका जो स्लोप होता है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे ये स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एंड स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को हम लोग क्या से लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ओके। नाउ बी डी, है ना, तो ये बी डी जो है वो कितना है, बताओ। तो ये देख लो, ये कितना है, दिस इज ओ ए इज यू, इसका मतलब ये भी हो गया कि दिस इज ऑल्सो यू, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस है, ओ ए एंड डी सी इज सेम, सो दिस इज यू। अब बी सी कितना है, बी है, तो सिर्फ ये पार्ट कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस करने से कितना हो जाएगा, बी माइनस यू, है ना। तो बी डी इक्वल टू बी माइनस यू, एंड ए डी बराबर कितना है, ओ सी, एंड ओ सी इक्वल टू हाउ मच, टी, टाइम। सो सॉल्व इट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, सो दैट्स इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस ए टी, सो इट इज प्रूव्ड। सो इस तरह से हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली प्रूव कर देना है, ओके। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट
इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज पोजीशन टाइम इक्वेशन, और नेक्स्ट में हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो नाउ वी विल प्रूव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें प्रूव करना है। इन दिस केस चिल्ड्रेन डायग्राम जो है, फिगर्स जो है, दैट इज एज यूजुअल, और वैल्यूज भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ओनली हमने पढ़ा था ना, ऑलरेडी आई सेड यू कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें दो चीज मिलता है। फर्स्ट एक्सीलरेशन का पता चलता है, ठीक है, और एक चीज क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ना, डिस्टेंस कवर्ड, ये चीज भी हमको पता चलता है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, एक्सीलरेशन यूज किया था, स्लोप से एक्सीलरेशन में यूज किया था। नाउ वी विल यूज दिस सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें याद रखना है, ये नोट डाउन करके रखो कि डिस्टेंस कवर्ड जो है वो ये यूज करना है टू गेट द S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये वाला के लिए भी यही यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड का जो कंसेप्ट है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय द AB, बाय द बॉडी ADB, डिस्टेंस कवर्ड बाय AB कितना करेगा वो, अभी बताया था ना, डिस्टेंस अगर निकालना है तो हमें क्या करना है, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये पूरा एरिया अंडर दिस ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा दैट इज ट्रेपीजियम, ABCO, ये जो ट्रेपीजियम है ABDCO, ये जो ट्रेपीजियम है ये पूरे का एरिया के बराबर होगा, दैट इज डिस्टेंस। सो दैट्स इक्वल टू एरिया अंडर BT ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा इसके बराबर होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय AB। ओके, सो डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, S से लिखते हैं, दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑलरेडी मैंने बता दिया है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स कौन सा है, AO प्लस BC, दैट इज BC, एंड हाइट इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट कौन सा हो जाएगा, OC हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो S इक्वल टू हाफ OA का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी वी नो, दैट इज U। ओके, ये U है, प्लस BC, ये B और C का वैल्यू कितना है, देखो तो V, दैट इज फाइनल वेलोसिटी B, एंड OC के बराबर कितना है, दैट इज T। तो देखो चिल्ड्रन क्या मिला इससे हमको, S इक्वल टू 1/2 U। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में हम V का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो V का वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या मिला था, फर्स्ट इक्वेशन में V का वैल्यू क्या हमने प्रूव किया था, V इक्वल टू U प्लस AT। तो ये V के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, U प्लस AT लिखेंगे इनटू T। ओके, ये याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में जो V का वैल्यू था, देखो फर्स्ट इक्वेशन में V का वैल्यू ऑलरेडी प्रूव किया है, U प्लस AT, तो V के प्लेस में U प्लस AT लिखेंगे आप। सो S इक्वल टू 1/2 U प्लस U 2U हो जाएगा और AT इंटू T। ओके, तो S इक्वल टू 1/2
अब t के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ut प्लस AT स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, और s इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा ut, और प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा हाफ AT स्क्वायर। दैट इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज प्रूव्ड। तो वेरी सिंपल चिल्ड्रन, बहुत सिंपल है, इसको बस यहाँ समझना है कि सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए v का वैल्यू पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन से जो मिला था। और नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड इक्वेशन के लिए, है ना। थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए ये पूरा प्रोसेस सेम ही रहेगा, ओनली यहाँ पे हमने v का वैल्यू चेंज किया था, पुट किया था। नाउ थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यहाँ पे t का वैल्यू हम लोग लगाएंगे, t का वैल्यू, और ये जो t का वैल्यू है ना फर्स्ट इक्वेशन में वो लगाना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ टू प्रूव दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Okay children, now we will prove third equation of motion, that is 2as equal to v square minus u square. So again the graph will be same, the values will be same, and the first three steps will be also same. As I told you, again we will calculate this third equation from distance covered by the graph AB, that is area under VT graph, like second equation. इसको भी ये एरिया को फाइंड करना है अगेन, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये सब हम लोग जानते ही हैं। और हम लोग ने क्या बोला था मैंने कि जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे हमने क्या करना है कि v का वैल्यू जो है नहीं लगाना है, इसमें हमें किसका वैल्यू लगाना है, t का वैल्यू लगाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं t का वैल्यू क्या आता है। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी। तो ये वैल्यू लगाना है हमको, t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। ये कहाँ से आया, हमें फर्स्ट इक्वेशन से ही आया। तो यहाँ पे हमें लगाना है t के प्लेस पे v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, s इक्वल टू 1/2, इसको हमको चेंज करना है v माइनस यू, तो इसको भी v प्लस यू लिख सकते हैं इसको हम लोग, दैट इज v माइनस यू बाई ए। अब ये दोनों को कंपेयर करो, कुछ याद आया, यस, द फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी, a माइनस बी। इसी के लिए मैंने u को पहले बाद में लिखा, v को पहले लेके आया, ठीक है। दैट इज a स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय a, हो गया, बाय a यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है, इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक स्टेप पहले देखते हैं इसको क्या करना है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, और इसको हम लोग ले जाते हैं इधर, और s इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, बेटर होगा। 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज प्रूफ। हो गया प्रूफ ये, सी 2as equal to b square minus u square. So in this way, very simple, easy method से हम first three equation of motion graphically prove कर सकते हैं। Okay, now let's move to the next slide. What we have? So children, now we will solve few numericals. This chapter, certainly every year numericals will come, at least 1 or 2 sums will come. So see the numericals, what type of numericals will come in this chapter. तो देखते हैं पहला क्या है, अब मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, तो इसको याद रखना है, विथ इन 20 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो निकालना है इनिशियल वेलोसिटी इफ रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज दिस मच, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ब्रॉट
मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, कोई भी चीज को अगर रेस्ट में, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट है ना, मतलब उसको स्टॉप कर दिया गया है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, दैट इज v इक्वल टू 0 विथ इन 20 सेकेंड, तो टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड। ओके, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें निकालना क्या है, u निकालना है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज v, ठीक है, ये निकालना है। एंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ एक्सीलरेशन। जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो उस टाइम में एक्सीलरेशन नहीं होता है, रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये रिटार्डेशन है ना, एक्सीलरेशन रहता तो ये पॉजिटिव होता, और रिटार्डेशन है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, u का वैल्यू निकालना है, v, a और t का वैल्यू दिया है, तो विच फॉर्मूला से हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये 3-4 वैल्यू किस फॉर्मूला में होता है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस a t, देखो सभी है ना, v u a t, v u a t इस इक्वेशन में आ जाता है, तो इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ सी v का वैल्यू कितना है, 0, u वी नीड टू फाइंड, a जो है ये है -2 एंड t 20, ओके, तो इसको हो गया 0 u प्लस माइनस माइनस 40 एंड इसको लेके आता है 40 इक्वल टू u, सो देयरफॉर u का वैल्यू हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड न्यूमेरिकल्स। A body start to slide over a horizontal surface with initial velocity, इतना दिया है, due to friction its velocity decreases at the rate of, ये देखना है ये क्या चीज है, how much time, टाइम खोजना है, will the body takes to stop, स्टॉप करना है, आखिर में बॉडी क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, तो इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, एंड देखो ये इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, दैट इज u 0.5 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड। अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज है, तो यहां से भी समझ में आ सकता है, ये यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एक्सीलरेशन का होता है या रिटार्डेशन का। तो डिक्रीजेज है तो रिटार्डेशन होगा, इंक्रीजेज रहेगा तो ये क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है या रिटार्डेशन होता है, सो दिस इज रिटार्डेशन 0.05 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये रिटार्डेशन है तो ये नेगेटिव वैल्यू में होगा। और हमें क्या निकालना है, टाइम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये भी हमको किस इक्वेशन से मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से ही। सो नाउ v इक्वल टू u प्लस a t, ओके, v इज 0, u 0.5 प्लस a दैट इज माइनस 0.05, t वी नीड टू फाइंड, इसको हमको खोजना है, तो 0 इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस माइनस 0.05 t। अब ये पार्ट को हम इधर ले आते हैं तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, दैट इज 0.5 और t इक्वल टू 0.5 बाय 0.5, तो इसको रिमूव करते हैं तो ऊपर 100 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, दिस कैंसिल, 5 कैंसिल, ओके, सो द आंसर इज 10 सेकेंड, इस तरह से होगा। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में क्या है आपके लिए। So let's see what we have in the third numericals. A scooter moving with a speed of 10 meter per second is stopped by applying brake which produce uniform acceleration of minus 0.05 meter per second square. How much distance will it cover before it stop? तो फाइनली बॉडी क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 अगेन, डिस्टेंस दैट इज s, यू नीड टू फाइंड,
इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 है, सो दिस वेलोसिटी इज u, ये u है 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन इज -0.05 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी नेगेटिव में दिया गया है। ओके, तो दिस इज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो okay, so how we will solve this? By which formula? See, b, u, a and s, it comes in which formula? b square minus u square equal to 2as, or 2as equal to b square minus u square, any formula you can use। तो देखो दोनों सेम ही है। 2a is given minus 0.05, s we need to find, b is given 0 and u is 10, so 10 square, so this will be minus 0.5 to the 10 s, and this will be minus 10 into 10, 100. So this minus and this minus cancel. So s equal to 100 by 0.10. If you remove, it will come 100. So this and this cancel. So this is 1000. So it is 1000 meter, and that's equal to 1 kilometer is the answer. Next, see in number 4 what we have. A scooter acquires a velocity of 36 meter per second, kilometer per hour in 10 seconds just after the start। just after the start, तो बॉडी जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ये वेलोसिटी एक्वायर किया है। सो इन दिस केस अगर बॉडी स्टार्ट से ये हो रहा है ना, शुरू हो रहा है, चलना शुरू किया है, इन दैट केस द इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है, और फाइनली स्टॉप हो जाता है तो उसमें क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। एंड हियर फाइनल वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को, क्योंकि ये सेकेंड में दिया है ना, टाइम इज गिवन इन सेकेंड, है ना, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, क्योंकि सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग, एक इजी टेक्निक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी 10 मीटर पर सेकंड। सो ये याद रखो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5/18, एंड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 18/5। ये 2 पॉइंट्स नोट करके रखो, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड, हमको एक्सीलरेशन निकालना है, तो ये किस में आ जाएगा? फर्स्ट फार्मूला से, v इक्वल टू u प्लस at। तो v कितना है? 10, u 0, a you need to find time 10, so 10 equal to 10a, so a equal to 10/10, that's equal to 1 meter per second square. So this is the answer. Now next, move to the next topic, that is uniform circular motion. Okay children, so the next topic is uniform circular motion. Uniform circular motion क्या होता है? The motion of a body around a circular path with uniform speed। मतलब कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे, है ना, एंड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसा कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे विथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, देन दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और क्योंकि सर्कल का जो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी, दैट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, है ना, बॉडी तो ये डिस्टेंस ही कवर करेगा ना, और इसको निकालने का फॉर्मूला कितना है? सर्कमफेरेंस, एंड सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr। तो वेलोसिटी जो है इस बॉडी का, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, देन उसका वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
दैट इज वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द बॉडी या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ऑफ द बॉडी बाय टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस होगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज 2 पाई r एंड टाइम जितना लगेगा दैट इज t। तो वेलोसिटी का निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई r by t व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड अ सर्कल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया एक रिवॉल्यूशन का, एक रिवॉल्यूशन जहां से स्टार्ट किया वहां से फिर वापस आने का, दैट इज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ जो अपने ऑर्बिट पे अराउंड द सन जो मोशन करता है ना, जो चक्कर लगाता है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन द सेम वे मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस के चारों ओर है ना अराउंड में जो चक्कर लगाते हैं इन इट्स ओन ऑर्बिट, दैट इज ऑल्सो दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। और जैसे सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं, दैट इज ऑल्सो द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ वन क्वेश्चन वी हैव, that is uniform circular motion, uniform circular motion is said to be accelerated। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मोशन तो यूनिफॉर्म है, तो उसको एक्सीलरेशन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि v और u तो एक जैसा है ना, तो वैल्यू ऑफ u एंड v इज सेम, क्योंकि उसमें एक जैसा कांस्टेंट मोशन में है बॉडी, तो v और u तो सेम रहेगा ना। तो ये फिर एक्सीलरेशन कैसे आ गया, तो देखते हैं चिल्ड्रन। देखो ये जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी में दो फैक्टर होता है ना, एक होता है मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है डायरेक्शन। हमने पढ़ा फर्स्ट वीडियो में दैट वेलोसिटी के पास दो फैक्टर होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज डायरेक्शन। इसी तरह जो स्पीड होता है, स्पीड में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना, बट वेलोसिटी में दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेलोसिटी अगर बढ़ाना है या घटाना है तो कैसे घटा सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड को बढ़ा दो या घटा दो, है ना, या डायरेक्शन को बढ़ा दो, डायरेक्शन को चेंज कर दो, या दोनों को चेंज कर दो। तो यहाँ पे क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, मतलब वेलोसिटी का तो वैल्यू सेम ही रहेगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा, लेकिन हम डायरेक्शन को तो चेंज कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं इसमें डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा तो एक्सीलरेशन आ जाएगा ना। यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, when a body moves uniformly in a circular path, it moves with uniform speed। क्योंकि सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी अगर मूव करता है तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है, बट ये चीज देखना है कि डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। देखो इसका डायरेक्शन लेकिन कंटिन्यूअसली चेंज होता है, जैसे हमने यहाँ 4 पॉइंट्स पे दिखाया है, लेकिन ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हो सकता है। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, बॉडी अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है। तो हर पॉइंट्स पे क्या है, डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट, क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो सो वी कैन से दैट इट हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया इट मींस वेलोसिटी भी चेंज हो गया, और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब v और u यहाँ पे है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिव राइज टू एक्सीलरेशन। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा इसका मतलब वहां पे v और u दोनों है, और v और u रहेगा तो एक्सीलरेशन आ गया, है ना। तो therefore the motion is called accelerated motion। In the same way एक क्वेश्चन और भी आता है, like the rotating blades of the fan also have acceleration। तो उसका भी आंसर इसी तरह से देना है, क्योंकि ब्लेड जो होता है फैन का
वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है, बट एवरी पॉइंट्स पे जिस तरह से यहाँ एवरी पॉइंट्स पे उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसका वेलोसिटी भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिव राइज टू एक्सीलरेशन। इसीलिए क्या कहा गया है कि अ मूविंग फैन, द ब्लेड ऑफ अ मूविंग फैन हैज एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक और प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं और उसके बाद वाइंड अप करते हैं आज के सेशन के लिए। थैंक यू। सो वी आर मूविंग टू द लास्ट slide, that is the fifth numericals, and after solving this we will wind up as I promised to you. Okay, so देखते हैं यहाँ पे, तो let's see what is that. Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds, and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. Then what are Joseph's average speed and average velocity, number 1 from A to B and number 2 A to C. तो देखना ये है कि नंबर 1 हम करते हैं, that is from A to B पे, है ना। तो क्वेश्चंस पहले समझ लेते हैं कि जॉसेफ जो है ये 2 पॉइंट है A और B, है ना। तो पहले जॉसेफ यहाँ से एक रोड है दैट इज 300 मीटर, ठीक है। ये 300 मीटर बड़ा रोड है, स्ट्रेट रोड है, और वो इसको कवर करता है कितना, 2 मिनट 30 सेकेंड्स में। तो जॉसेफ जो है ए से बी तक जाता है, दैट इज 300 मीटर रोड in time 2 मिनट 30 सेकेंड में, एंड देन टर्न अराउंड, फिर वापस वो आता है एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। कितना मीटर बैक आता है, 100 मीटर बैक आता है, ओके, इन 2 पॉइंट C, ये जो पॉइंट है इसका नाम है C, इन अनदर 1 मिनट। तो इसको टाइम कितना लगा कवर करने में, 1 मिनट लगा, ठीक है। तो व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी देखते हैं, ए से लेके बी तक देखते हैं पहला। तो क्या निकालना है, एवरेज स्पीड देखना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए, दैट इज टोटल, ये जो सम्स है ना, मैंने प्रीवियस स्लाइड में जो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था उसके बेस्ड पे है। मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट है तो एक बार करा देना जरूरी है, कुछ बच्चे का क्वेरी भी था इस पे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। तो टोटल डिस्टेंस देखो तो ए से बी जाने में जोसेफ को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, दैट इज 300 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लगा, दैट इज 2 मिनट 30 सेकेंड, दैट इज 120 प्लस 150 सेकेंड, 150 सेकेंड, सो दैट्स इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, दैट इज द एवरेज स्पीड। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस, इसमें होता है डिस्टेंस और टोटल टाइम, और इसमें होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो ए से बी जाने में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है ना, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, और टाइम भी सेम ही लगा था, तो टाइम भी 150 होगा, तो दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी में देखते हैं एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल टाइम, ओके। तो टोटल डिस्टेंस
ए से सी तक, तो ए से बी तक गया और फिर वापस सी तक आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 300 प्लस 100 दैट इज 400। और टाइम कितना लगा इधर ये पूरा ए से बी जाने में 150 और वापस आने में 1 मिनट में 60 सेकेंड है ना। तो 150 प्लस 60 दैट इज 400 बाय 210, so that is 40 by 21 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, तो दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी तक, तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना ये पूरा है 300 और यहां तक हो गया 100। तो इनिशियल पोजीशन जो जेड का ये है, फाइनल पोजीशन सी पे है, तो ये कितना हो गया 300 माइनस 100 दैट इज 200। एंड टाइम तो वही लगेगा है ना, क्योंकि गया और वापस आया, टाइम तो सेम लगेगा जितना पहले लगा था दैट इज 210। सो ये हो गया 20 बाय 21 मीटर पर सेकेंड। तो देख लिया इस तरह से। सो ओके चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडे। इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन द चैप्टर। फिर भी अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर अपने क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। कोई क्वेरीज है तो भी आप रख सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज पुट और प्रेस like buttons. Thank you. A big thanks to you all for watching for watching the video. Thank you.